Hello students, today we are going to discuss third part of chapter 1, that is crop production and management. In this part we are going to discuss agriculture implements and animal husbandry. What is agriculture implement? जो भी हम टूल्स यूज करते हैं स्टूडेंट एग्रीकल्चर के लिए और वी कैन से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो टूल्स यूज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. सो वी कैन से those tools that help in agriculture or crop production, that is called agriculture implement, right? Plow is a tool that help us in loosening the soil and turning the soil. It is made up of wood. ये किससे बना होता है? वुड से. प्लो किससे बना होता है? वुड से बना होता है. और इसको किसके थ्रू चलाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल. सो वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ वुड and drawn by a pair of bulls and other animal, and it is used for tilling and adding fertilizers and removing unwanted plant. Right students, now we have another. This is the image of wooden plow. Now we have another tool, that is hoe. What is hoe? Hoe is also a tool for agriculture practices. It consists of long rod of wood. ये किससे बना होता है? वुडन रॉड से बना होता है. एक लॉन्ग रॉड होती है, वो किसकी बनी होती है? वुड की. और इसके साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वुडन रॉड है, उससे क्या अटैच है? एक ब्रॉड आयरन सीट. क्या अटैच है उससे? एक एंड में ब्रॉड आयरन सीट. और वो ब्रॉड आयरन सीट का क्या वर्क है? ब्लेड की तरह वो वर्क करता है, राइट? और इसको किसके थ्रू पुल करते हैं? एनिमल के थ्रू, राइट? तो वी कैन सी इट इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड्स of its end and work like blade, and it is pulled by animal. And what are the uses of hoe? It is used removing weeds and for losing soil. Next is cultivator. What is cultivator? Cultivator, when plow is attached to a tractor. प्लो को अगर हम अटैच कर दें, आयरन प्लो, राइट? आयरन प्लो को किसके अटैच कर दे? ट्रैक्टर से. तो वो क्या बन जाता? कल्टीवेटर. Means when plow is attached to a tractor, it is called a cultivator. Clear? It save the time and labor, right? Then now is student animal husbandry. What is animal husbandry? अगर हम एनिमल्स को मीन्स लाइव स्टॉक को केयर करें, शेल्टर प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. So what we get from the animal, there are the different categories of animal who provide us different types of products. Like we have milch animal. What is milch animal? Animal which provide us milk, that is called milch animals. There is the example cow, buffalo, goat. These all are the example of milch animal. Now student, we have another meat and egg giving animal. What is mean? Animal which give us meat and egg, that animal is called meat and egg giving animal. There is an example cattle and hen. Now student, we have another category of animal, that is trot animal. What is trot animal? Working animal is called trot animal, right?
Here is the example: buffalo, camel, horse. These all are the trot animals. Horse को तो हमने देखा भी होगा स्टूडेंट्स कि हॉर्स किस लिए यूज़ होता है, राइडिंग के लिए यूज़ होता है, कार्ट के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है. सो ये सब कैटेगरी किसमें, ट्रॉट एनिमल. राइट स्टूडेंट्स, we are going to discuss exercise of your NCERT textbook. We have the question fill in the blanks. Right? We are here to discuss the exercise. The same kind of plant grow and cultivated on a large scale. क्या स्टूडेंट एक जो प्लांट्स को एक ही जगह ग्रो कर रहे हैं, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं लार्ज स्केल में, उसको क्या बोलते थे, क्रॉप बोलते थे. राइट? तो आंसर क्या होगा, क्रॉप. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल. क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने, प्रोडक्शन करने से पहले क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं. क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. ये भी हमने एक एक्टिविटी समझी थी ये सोइंग में. तो ये क्या था, जो बैड क्वालिटी के सीड्स होते हैं, जो डैमेज सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करने लगते हैं. तो आंसर क्या होगा, फ्लोट. डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द वाटर, top of the water. Now for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the are essential. क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या नीड्स हैं, सनलाइट की नीड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की नीड्स हैं और वाटर की नीड्स हैं. क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट वी हैव द सेकंड सेट, मैच द फॉलोइंग. खरी क्रॉप्स, क्या होगा इसका मैच, paddy and maize. These are the kharif crops example. Rabi crops, wheat and gram pea are the example of rabi crop. Chemical fertilizer का example क्या होगा, यूरिया and super phosphate. Organic manures का example क्या होगा, animal excreta and cow dung and urine and plant waste. Now student, now we have third set that give the two example of each. खरीफ क्रॉप का example क्या होगा, we can say paddy and maize are the example of खरीफ crop. Pea and wheat are the example of rabi crops. So student, write up on word each of the following. Preparation of soil. Student, preparation of soil को अपने words में लिखना है. क्या होता है, क्या हमने डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है. राइट? और क्या होता है स्टूडेंट, इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, जिससे कि प्रॉपर क्या होती है, जो रूट्स होती हैं क्रॉप की, वो इजीली पेनिट्रेट कर सकें. और ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होता है, प्लो के थ्रू. प्लो क्या एक टूल है. स्टूडेंट वी हैव अनदर सोइंग. what is the sowing? Student, we can write also about sowing. Sowing is a process in which we are putting the seeds. और उसको किसके बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं सीड्स को, किस बेसिस में, HY जर्मिनेट सीड्स होना चाहिए एंड एक्सेट्रा. स्टूडेंट वी कैन राइट, और इट इज़ डन बाय टू मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड सीड ड्रिल. तो सीड ड्रिल में क्या होता था स्टूडेंट्स, उसको पुट कर सकते हैं सीड्स. तो स्टूडेंट आई होप आप ये सब लिख सकते हैं ना. और सेकंड इज द weeding. What is the weeding? Weeding is unwanted plant which grow along with main crop. मेन क्रॉप के साथ ये सेल्फ क्या होता है, ग्रो करने लगता है. और जो सॉइल की जो मेन क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसको टू मेथड से करते हैं. टू मेथड क्या है, वेडीसाइड्स क्या होता है, वेडीसाइड एंड मैनुअली करते थे. मैनुअली इसको चॉप करते थे, कट करते थे अनवांटेड प्लांट्स को. तो एंड देन लास्ट इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या होता है स्टूडेंट, थ्रेसिंग क्या होता है,
थ्रेसिंग होता है स्टूडेंट हे को मेन क्रॉप से अलग करना। क्या करना है? क्रॉप से अलग करना, ग्रेन को अलग करना, दैट इज द। और ये थ्रेसिंग किस किस मशीन के थ्रू कर सकते हैं? कंबाइन के थ्रू। कंबाइन इज द मशीन दैट इज हेल्प इन separating the hay and grain. Right, student, I hope you can write the answer in your own word. Explain how fertilizer is different from manure. Fertilizers manure से कैसे अलग है, उसके differentiate क्या है? Manure क्या है? Organic compound, organic substance. और fertilizers क्या है? Inorganic substance, inorganic compound. और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजर्स क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यू फर्टिलाइजर्स क्या होता है स्टूडेंट? फर्टिलाइजर्स सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। ज़्यादा एक्सेस में हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सॉइल में क्या हो जाती है? सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। मैन्योर से कुछ डैमेज नहीं हो सकता है, उसको अगर हम उसको एक्सेस यूज़ किए तो डैमेज नहीं हो सकता है। फर्टिलाइजर से ग्रोथ ईजिली और जल्दी हो जाती है, मैन्योर से स्लो होती है। सो दीज आर द डिफरेंशिएट वी कैन राइट अबाउट द fertilizers and manures. What is irrigation student? Irrigation is the process in which we are supplying the water. They are the two method, right student? They are the two method. कौन कौन से मेथड है? स्प्रिंकल मेथड है, ड्रिप मेथड है। तो ये क्या करते हैं? वाटर को कंजर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं? सेव करते हैं इसके। If wheat, next student we have the question, if wheat is sown in the kharif season, what would happen? Discuss. Student, क्या होता है अगर हम wheat को खरीफ सीजन में हम उसको ग्रो करें तो क्या होगा? खरीफ क्रॉप नीड्स मच वाटर। क्या होता है खरीफ क्रॉप? क्या होता है? मॉनसून सीजन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? जितनी भी जो क्रॉप्स होते हैं उसको नीड्स होती है वाटर की। और वीट क्या है स्टूडेंट? विंटर क्रॉप है, रबी क्रॉप है, उसमें क्या होता है? लेस वाटर की नीड्स होती है। तो क्या होता है? जो वीट है, वीट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जो क्रॉप है वीट की वो खराब हो जाएगी। आई थिंक स्टूडेंट यू कैन राइट ना। द नेक्स्ट इज student 8, question number 8, explain how soil get affected by continuous plantations of crop in a field में अगर हम लगातार क्या करते हैं? एक क्रॉप लगे उसके बाद फिर लगा, फिर क्या ये कंटिन्यूस उसको प्लांटेशंस कर रहे हैं, उसके कंटिन्यूशन क्रॉप कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्या होगी? जो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे प्लांट क्या होते हैं? अच्छी तरह ग्रो नहीं हो पाते हैं। राइट, what are the weeds? How can we control them? Weeds are unwanted plant student, हमने डिस्कस किया था। और इसको अगर हम कंट्रोल करना है, we have two method. One is weedicide. weedicide क्या होता है? केमिकली हम उसको क्या कर सकते हैं? weeds को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और we have another method, manual method, right, जिसको by hand हम मैनुअली उसको क्या करते हैं? कट करते हैं। The student, we have the last question. Arrange the following box in proper order to make flow chart and sugar crop product. I think student you are now able to answering these questions. Now and I am providing the exercise answer and question answer of your textbook. That is, here is the fill in the blanks answers. Matching. Question number 4. Question number 5. Answer number 6 and 7. 8 and 9 answer. Answer number 10. What have we learned in this video? Agriculture, implement animal husbandry, solved questions. Right, student? So right, student, you have to write question answers in your fair copy.
Clear? And this is the last part of your chapter 1. And student, I am ending the video here. Thank you.